षटकार लगावले त्याबद्दल अरुण भोईर सर आणि संतोष सर यांच्याकडे प्रत्येक षटकार 200 रुपये असं 400 रुपयाचं बक्षीस घेऊन जायचं जयू. मनोज विशे फॅम टीम आहे नक्ष 11 देखना जयू याला विनंती असेल की हे 2 षटकार जे ठोकलेले आहेत त्या 2 षटकाराचे 400 रुपयाचे बक्षीस आहे अरुण भोईर सर आणि संतोष तरे यांच्या माध्यमातून नक्कीच तुला आपण देतोय संजय भाई मात्रे यांच्या शुभ हस्ते. यस बाबू नाचन ने इस वक्त नक्श 11 और स्पेशली या खोद जिन्हें के बोरियोली का उस्मान पटेल कहा जाता है उनको ऑल द बेस्ट कहा है. Once more remind you, Manoj Vishe fam team Naksh 11 won the toss. They decided to the field first. नाणेफेकी जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारताना नक्ष 11. Yes, Akshay Vishe, the 12th man in our commentary box. अंजुमन स्पोर्ट आपको ओपनर्स भेजना है. लास्ट ऑफिशियल कॉल है कमेटी की तरफ से. Sharad open the bowling attack. Yaya Khoth at cover point. Babu Nachan, all the best for Yaya Khoth and Naksh 11. And Babu Jadoo also, all the best for Naksh 11. Manoj Vishev fam team. Two openers on the ground. Shehbaz Sheikh, the captain with Kashif. I think Junaid not included in the side, one of the key player of Anjuman. Kashif facing Sharad. And here we watch Sharad. Right arm over the wicket. Facing him batsman Kashif. Goes to Kashif, goes his back foot, is quite cut. But fielder at deep point. Enough time batsman gets one. Classical start here from Kashif. Cuts their ball but straight to deep point. So 1 for no wicket. Anjuman off the mark. And Kashif off the mark. वेळेच्या संदर्भातील सहकार्य करायचं नक्ष 11. Yes, there is only 25 minutes calculated time for 5 overs. Here goes Sharad, goes passes, goes to Shehbaz Sheikh, short arm pull, ball is racing to wideish fine leg boundary and cross the fence for 4. What a start from Shehbaz Sheikh. He opened his account with boundary, captain and Anjuman 5 without loss. Atish Patare, Sagar Patare, Samir Patare, Keval Patare, the Lagan sponsor, and Mania Patare, best of luck to Naksh 11. एक चांगली सुरुवात झालेली आहे सिद्धीबाई सर अंजुमन संघाची. दोन्ही तोला मोलाचे संघ आहेत. Yes. Vihan Prashant Vishe also, all the best for Naksh 11. Shot once more, try to hook that ball. They threw for a cheeky single. And finally, I think umpire called for the third umpire. There's a hesitation between both batsmen. Interesting to see in replay. Shehbaz survives or not. Very, very difficult decision for umpire. Because break the bells, there is a rule of break the stumps. Not out says by umpire because bells for the body of Sharad. Then the rule is break the bells, then break the stumps.
Shehbaz Sheikh survives there. 6 without loss. Anjuman Sport losing a toss batting first here. Here goes Sharad. But this time cross batted stock all on the ground to long on. One more to total now. Score moves up to 7 for no wicket. Anjuman Sport, Sarfaraz Babu Khan fam team. Yahya Khot at now deep backward square leg. One of the great stroke player is Yahya Khot. He patrolling on deep square leg boundary. Sharad, right arm round wicket. But this time flashing outside the off stump, away from the off stump, he bows in Dusra Molla, white signal from umpire. So 1-2 score now, 8 for no wicket. Anjuman Sports bowling has been outstanding because they have 3 spinner in their side, like Abuzar, like Saif Sheikh. Shot down to leg side, should be a wide, yes it is. One more to total now, 2 consecutive wide, 9 for no wicket. Suresh Pardi, all the best for Naksha 11. And Nilesh Desle, Bunty Sport sponsor also, all the best for Naksha 11. Nice name like Naksha 11. But this time wrong way and hat-trick of white. लगातार 3 चेंडू वाईट टाकण्यात आलेले आहेत. खराब गोलंदाजीचं प्रदर्शन होतं इथे आता मात्र पहिल्या षटकामध्ये नक्षी 11 संघाचं. Yes, there is a lot of compliment for commentary panel from Sagar Patare and Lagan team. Thanks to Lagan team and Sagar Patare and Vishal Patare. षटकातील फक्त 4 चेंडू फेकण्यात आलेले आहेत आणि 10 धावा फलक झाला आहे. कुठल्याही प्रकारचा गडी बाद झाला नाहीये. Yes, not is a. I think Sharad not control on his length and line. Here he go. Goes passes. But this time shot and pull in the gap. No chance to Yahya. 4 runs. What a shot he played. What a shot he played. Shot and pull and powerful. Placement is high quality. One bounce cross the square leg boundary for 4. अतिशय चांगला फटका. बॉडी लँग्वेजवर जाऊ नका. ज्या प्रकारे तो फलंदाजी करतोय ती बघण्यासारखी आहे. संतुलन बघा किती चांगले फलंदाजीमध्ये करताना. परफेक्ट फलंदाजी करतात. Here he go. This time shot. Pulls it around the off stump all on the ground to mid wicket and they go for 1. That marks are expensive over, I think, Darshan Naik 15 without loss. अतिशय चांगली सुरुवात झालेली आहे. पहिल्या षटकाचा समाप्ती बघितला. अतिरिक्त धावा देखील दिल्या गेल्या. चौकार देखील लागण्यात आलेले आहेत आणि स्पेशली चांगली फलंदाजी केली ती शाहबाजने. 2 उत्तुंग एक चांगले टोळे जंग चौकार मारले आपल्या समय में सहयोग करना है. कोई मोहल्ला कमेटी मीटिंग नहीं रहेंगी. 1 मिनट ओवर के लिए अपने 7 मिनट का समय लिया है. 25 मिनिटांचा तुम्हाला टायमिंग दिलेला आहे नक्षी 11. त्या 25 मिनिटांमध्ये तुम्हाला आपली 5 षटकं समाप्त करायची आहेत. बघू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवरती. अरुण भोयर साथ में रवि सर की बात ही अलग है. सूत्र संचालक का उनका कोई भी बदल भादवड़ में नहीं बल्कि भिवंडी में भी नहीं हो सकता है. संजय मात्रे, संतोष तरे, रंजीत नाइक साहब और सुरेंद्र पाटिल अभी हमसे जुड़े. ओम साई अटोकिंग के आपका भी हार्दिक स्वागत है. बंटी को गेंदबाजी दी गई है लंबे रनअप से मुड़ते हुए. राइट आर्म राउंड विकेट. शहबाज के लिए आगे रखा था. हवा में स्ट्रोक जरूर है लेकिन सेफ जाता हुआ 1 रन बनता हुआ.
इस एक रन से स्कोर 16 पे पहुंचा है। जो बैटिंग पावर प्ले वो 1 से 4 ओवर के बीच लेना है, बल्लेबाजी वाली टीम को इस बात का ध्यान रहे। अतिशय इम्पॉर्टंट सूचना ही, तुम्हाला बॅटिंग पॉवर प्ले जर घ्यायचा असेल तर पहिल्या 1 ते 4 षटकाच्या मध्येच घ्यायचं आहे. शेवटच्या षटकात तुम्हाला हा दिला जाणार नाहीये. विहान प्रशांत विशे ने इस वक्त वफाले ने नक्श 11 याया खोत और अक्षय विशे को ऑल द बेस्ट कहा है। गेंदबाजी करने के लिए दूर से मुड़ते हुए बंटी सामना करेंगे काशिफ। इस मर्तबा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गेंद हवा में घूमते हुए बॉलर घुमा गई गेंद उनको, 2 रन बनते हुए। इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते हैं जब गेंद आसमान में जाकर खड़ी रह जाती। अतिशय उंच आकाशात चेंडू होता आणि संतुलन नव्हतं त्या चेंडूवरती त्या गोलंदाजाचं. पहिल्याच बघितलं होतं की जसा चेंडू आकाशात होता स्वतः गोलंदाज थोडा घाबरला होता की ही जेल मी पकडू शकेन. आत्मविश्वास कुठेतरी बघायला मिळाला नव्हता. लेकिन क्रिकेट में आपको मुकाबला डर के नहीं, क्राइम पेट्रोल की तरह डट के करना होता है। अतिशय बरोबर. एक चांगला चेंडूची खेळ झाली होती, मात्र झेल पकडण्यात अयशस्वी होता गोलंदाज. 18 रन बिना किसी विकेट के, बढ़िया शुरुआत अंजुमन स्पोर्ट्स की। बहुत अच्छी गेंद, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। अंजुमन स्पोर्ट्स का जब भी ध्यान आता है, महिंद्रा ने जो अंजुमन ट्रॉफी को जीता था वो पहला मुकाबला ध्यान में आता है। गैसुद्दीन शेख और बिलाल शेख शारजा में देख रहे थे, मुकाबला बहुत ही कट टू कट था। अबूजर ने मिसफील्ड किया, महिंद्रा के झोली में वो मैच आया, वहां से पलट के ही नहीं देखा महिंद्रा ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा करारा ऑन ड्राइव, हाफ वॉली पे लेके गेंद को वाइडिश मिड विकेट पे फील्डर ने उठाया, 1 रन बनता हुआ। एक बात नहीं भूलना चाहिए दर्शन नाइक के अंजुमन की जो स्पिन गेंदबाजी है, अगर वो 50 रन बना लेंगे तो कठिनाइयां पेश कर सकते हैं। हालांकि यहिया खोत स्पिन और तेज दोनों गेंदबाजी को अच्छा खेलते हैं। अतिशय रोमांचक लढत होईल, कारण की दोन्ही संघ हे तोलामोलाचे. दोन्ही संघामध्ये जी बॅटिंग, बॉलिंग आणि फिल्डिंग ही सेम इक्वेशन मध्ये बघू शकता. यस, पूरे सीजन में देखिए बीसीसी बोरियोली पड़गा के बल्लेबाजों को अहमद बलेरे ने 6 ओवर के 25 साल के इतिहास में शतक लगाया। 6 ओवर में शतक लगाने वाले वो पहले बैट्समैन है। शाहिद खान ने अर्धशतक लगाया, अहमद ने अर्धशतक भी लगाया और या जरार मुल्ला भी अर्धशतक इस सीजन में लगा चुके हैं। चला, तुम्हाला जो अवधी दिला त्यामध्ये षटकांची समाप्ती करायची आहे. बहुत ज्यादा नहीं चमके तो योगेश पापा सूसे और माजिद शेख। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश, बल्ले के करीब से गेंद जाती हुई। योगेश ने कप्तानी बहुत अच्छी की है बंटी स्पोर्ट्स की, लेकिन वो योगेश इस सीजन में नजर नहीं आए हैं जिनकी गेंदें बैट्समैन को घुमा देती थी। अतिशय स्विंगिंग बॉल फिरकीचा जादूगर म्हणावा लागेल पडगा बोली परिसरात. राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा हवा में गेंद और सॉफ्ट डिसमिसल, आउट हो गए शहबाज शेख। बाबू जादव, अंकुश जादव और सचिन विशे ने नक्श 11 को ऑल द बेस्ट कहा। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल, लेकिन गेंद थोड़ी टिप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब निकल रही थी। सॉफ्ट डिसमिसल, पहला झटका लगता हुआ। फील्डिंग को तुरंत सजाना और आने वाले बल्लेबाज को तुरंत आपको भेजना है, इस बात का ध्यान रहे। इसके बाद जो टीम का मैच होने जा रहा है मैं उसको आवाज देना चाहूंगा। यह आज की रात का सबसे बड़ा मुकाबला है। रवि गुलवी फैम टीम प्रिंस मूवीज और जॉली स्पोर्ट कामतकर नरेश मात्रे फैम टीम। आज की रात का सबसे बड़ा मुकाबला है। देखना है कि कल्पेश ठाकरे और एक तरफ अवी पाटिल। अवी पाटिल की अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे विकेट टेकर गेंदबाज में रैंक कर रहे हैं। 1 पे उसामा पॉइनियर के, 2 पर राजन वीरेन स्पोर्ट्स के, 3 पर अवी पाटिल और 4 पर बी इंडियन के उजेर। बघू शकता आपलं मान्यवर सन्माननीय संजय भाई म्हात्रे व त्यांच्यासोबत त्यांचे सर्व मित्र परिवार या सामन्याचा आनंद घेताना. शरद म्हात्रे नजर येतात तिथे, अरुण भोईर,
संतोष तरे, रणजित नाईक, नाईक केबल नेटवर्कचे प्रोप्रायटर, तसेच दिलीप बाप्पा नाईक व सुरेंद्र पाटील, इतर सर्व मान्यवर या सामन्यांचा आनंद घेताना 19 रन 1 विकेट गंवाने के बाद गेंदबाजी के लिए आशीष को बुलाया है। देखना है कि एमएलए ट्रॉफी में काफी कशिश है, लेकिन आशीष की गेंदबाजी में कशिश रहती है या नहीं। आशीष फील्ड को अभी भी सजाया जा रहा है। या खोत लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर है, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। पहली गेंद अंदर आने दिया था, कलाइयों का उपयोग टर्न कर दिया ऑन साइड में, कट के अंदर की जानी भाई थी, इन कटर गेंद थी और बहुत ही लेट फ्लिक शॉट खेला था 1 रन के लिए अबूजर ने। अबूजर का खाता खुला, कुल स्कोर 20 पे पहुंचा। या खुदची जर शर्यष्टी बघितली सिद्धी बाबा सर, तर उस्मान पटेल शी थोड़ी जुलती मिलती है। यस, इसीलिए उन्हें बोरियोली का उस्मान पटेल कहते हैं। शॉर्ट गेंद, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई, बीट हुए काशिफ। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष, गेंदों को अंदर ला रहे हैं। ये देखिए टिप्पा खाने के बाद गेंद इन कटर बन रही है, अंदर की जानिब घूम रही है। आज विकेट भी उतना अच्छा नहीं है, विकेट में कई पैचेस है और स्पिन गेंदबाजी को इसमें काफी मदद है। चांगली गोलंदाजी होताना आता मात्र नक्षी 11 कडून। राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी भी गेंद, भटक गए दूसरे मोहल्ले में वाइड। 1 रन से 21 पे पहुंचा स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स का। इसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। दोनों टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। रवि गुलवी फैम टीम प्रिंस मूवीज यंग टीम है, 2-2 हाथ लेंगी जॉली स्पोर्ट कामतगर एक्सपीरियंस टीम के सामने। इस मरतबा मिसक्यू पुल स्ट्रोक है, एलिवेशन अधिक नहीं बना था, खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, गेंद गई वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन और काशिफ ने अपना विकेट फेंक दिया। 22 पे दूसरा विकेट गिरा है। काफी समर्थक नक्श 11 के आर.के. पाटील स्टँड में है। जल्लोष करताना बघू शकता रिप्ले मध्ये फोर्सेबल हा पुलचा स्ट्रोक बघितला होता, व्यवस्थित बॅटवर आला नव्हता चेंडू, पहिल्या बॉक्सने क्षेत्ररक्षण हाताळून एक चांगली फेकी करतोय आणि धावबाच्या रूपाने काशिफ हा बाद होतोय। सलामीर होता, बऱ्याच अवधीनंतर फलंदाजी करत होता, मात्र मोठे फटके कुठल्या प्रकारचे त्याच्या बॅटवरून निघाले नाही। यस, प्रिंस ऑफ बोरियोली नबील खोत, जिनके क्लास शॉट आप लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पे देखते थे, स्ट्रेट खेलने में माहिर बल्लेबाज उन्होंने या खोत को ऑल द बेस्ट कहा है। साथ ही साथ आदित्य कप के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट जो दूसरा के बहुत माहिर थे, पप्पू दिवकर ने भी ऑल द बेस्ट कहा है। ये देखिए हमारा टॉस बॉक्स, 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पे नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए। रैयान, ये अच्छे युवा खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर भी है। बाईस रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस मरतबा पुल हवा में, फील्डर उसके नीचे, लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से जाती हुई 6 रन। मौका भी दिया और छक्का भी दिया। और दर्शन नाइक, गेंद सर के ऊपर से जाए पानी, दोनों सूरतें डूबने वाली रहती। अतिशय बरोबर, चेंडू डोक्याच्या वरून जातोय आणि कधी कधी असे चेंडू डोक्याच्या वरून जाणार आहे म्हणजे मॅच देखील डोक्याच्या वरून जाण्यासारखीच होतोय। यस, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट नहीं खेल सकते। कोण बघू शकता प्रिंस मूवीज तयारीत आहे आपल्या पुढच्या सामन्यासाठी। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था आदित्य ठाकरे कप में प्रिंस मूवीज का। कल्पेश ठाकरे को दिखाया जा रहा है टीम के कैप्टन। बहुत ही युवा टीम है और जॉली स्पोर्ट एक बहुत ही अनुभवी टीम है। आज की रात का सबसे अच्छा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। इस मरतबा पैर नहीं चले थे, जगह से खेले थे वहां पे बैट्समैन। जब आपके पैर नहीं चलते तो रन नहीं चलते, और जब रन नहीं चलते तो टीम नहीं चलती। 3 ओवर की समाप्ति, ये देखिए किस तरह से खेला था। 28, तीसरा ओवर चल रहा है अभी। ये देखिए बल्ले के करीब से
बाबू नाचन हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। इस बीच अगेन फोर्स किया, खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया कैच। बंटी ने कोई गलती नहीं की। ऐसी बात है दर्शन नाइक के फोर्सिंग स्ट्रोक में सचिन तेंदुलकर और लार्स क्लूजनर बहुत माहिर बल्लेबाज रहे हैं दुनिया के क्रिकेट में। ये देखिए अंदर आती हुई गेंद को पिछले पांव पे जाके फोर्स किया था। फोर्स वैसे भी जबरदस्ती को कहते हैं और जबरदस्ती में कोई एक आधा शॉट ऐसा आता है जिसको आप जबरदस्त कह सकते हैं। अतिशय बरोबर, बंटी होता तिथे, झेल घेऊन त्यांनी घंटी वाजवून टाकलेली आहे. आता मात्र अंजुमन संघाची बघू शकता पुढच्या मॅचचे खेळाडू आपल्या सामन्यासाठी तयार. 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 28। अगला मुकाबला दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में रहना है और आखिर में जॉली युवा कामतकर खेलने वाली। इसका मतलब आज देर रात तक कामतकर नहीं सोएगा। अतिशय बरोबर, दोन्ही संघ कामतकर, जॉली युवा आणि जॉली कामतकर, एक अगली अनुभवी संघ खेळेल आणि एक युवा संघ खेळेल. अगली 2 ओवर में क्या होता है ये आइए सुनते हैं। बहुत ही मशहूर कमेंटेटर, आवाज में बहुत ही दमखम है, दर्शन नाईक। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. पॉवर प्ले घेण्यात आलेला आहे. आता मात्र बघूया पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी होते आहे का अंजुमन संघाची. सुरुवात अतिशय चांगली झाली होती, मात्र त्यानंतर हवी तशी परत फटकेबाजी झालेली नाही आहे. शहबाज चांगली फलंदाजी करत असताना बाद झाला. दरम्यान आता खेळण्यात 2 फलंदाज आहेत, ते अकिल आणि अरबाज. स्ट्राईक एंडला अकिल आहे. पॉवर प्लेचा पहिला चेंडू अकिल याच्यासाठी. आता मात्र यष्ट्यांच्या दुरून जातो चेंडू लेफ्ट साईडच्या दिशेने. पंच गोकुलदास पाटील वाईटचा इशारा करतात. अतिरिक्त धाव मिळते संघाला. धाव संख्या होते ती 29. चौथ्या षटकाचा मार्गस्थ आहे खेळ. गोलंदाज बंटी, एक प्रसिद्ध नाव बंटी. अकिल अतिशय अमरेला फिल्डिंग म्हणावं लागेल आणि व्हाईट ड्रेसमध्ये सगळे फिल्डर अतिशय स्पोर्टी दिसतात. पुन्हा एकदा हुक केलेला चेंडू स्क्वेअर लेग सीमेरेषेकडे. चांगलं क्षेत्ररक्षण होते, अतिशय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. आपल्या संघासाठी नक्की 3 धावा वाचवलेल्या आहेत तिथे. एफर्टलेस 3 रन बचाए और इस तरह की जो फील्डिंग रहती है ना, या कैचेस रहते हैं, गेंद वो हाथों में बैठ जाती है। लेकिन अनुमान बहुत अच्छा था। ये देखिए पिछले पांव पे जाके शॉर्ट हम पुल लगाया था, बढ़िया फील्डिंग। अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण बघितलं आपण नक्षिलवनच्या क्षेत्ररक्षण त्या स्क्वेअर लेगच्या सीमेरेषेच्या कडे. अशाच प्रकारचं क्षेत्ररक्षण राहिलं तर एक चांगलं फाईट देऊ शकतं बंटी. पुन्हा एकदा हुक केलेला चेंडू आणि हा चेंडू मात्र लॉंग लेगच्या सीमेरेषेच्या वरून जातोय. षटकार डायरेक्टली टीव्ही स्क्रीन, जी मोठी स्क्रीन आहे त्याच्यावरती जाऊन पडतोय सिद्धीबाई हा षटकार. छोटी गेंद थी और बहुत खूबसूरत एलिवेशन, बल्लेबाज अबूजर। ये देखिए किस तरह से गेंद के लाइन के अंदर आए और गेंद को हुक कर दिया एलईडी स्क्रीन पर 6 रनों के लिए। 3 गड्यांच्या मोबदल्यात आतापर्यंत 36 धावा जमा आहेत आणि आता मात्र अकिल चांगली फलंदाजीला सुरुवात करतोय. अबूजर. डॉक्टर शोएब ने अंजुमन स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। चेंडू बदलण्याची मागणी केलेली आहे तिथे फलंदाजाने. लगेचच आमच्या चेंडू मॅनने चेंडूची पूर्तता करायची आहे. आपण बघतात मित्रांनो, अहमदाबाद चषक 2017 आजचा 4था दिवस आणि सिटी क्रिकेटचे सामने बघतोय. आतापर्यंत अतिशय जबरदस्त सामने झालेले आहेत. काहीसे पलटवार देखील झालेत, उलटफेर झालेले आहेत. उद्या देखील अतिशय धमाकेदार क्रिकेटची मेजवानी असणार आहे अहमदाबाद चषकामध्ये. आणि थोडासा क्रिकेट थांबलेला आहे कारण की चेंडू बदलण्याची माग केलेली आहे ते फलंदाजाने. चांगली आता फलंदाजीला सुरुवात झालेली आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ सोडला त्यानंतर पहिले तिसऱ्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये पाहिजे तेवढ्या धावा आलेल्या नाही आहेत. मात्र चौथ्या षटकामध्ये आता मात्र सुरुवात केलेली आहे. स्पेशली अरबाज याच्या बॅटवरून निघालेला एक षटकार बघितला आपण. धावसंख्या झालेली एकूण 36. एक बात तो है कि दोनों 36 अंजुमन के दोनों बड़े बैट्समैन इस वक्त क्रीज पे मौजूद है, अकील और अबूजर। आपण बघू शकता टीव्ही स्क्रीनवरती मनोहर तरे मोबाईलमध्ये फोटो दाखवताना चिमोड्याचा
सोबत दिलीपप्पा नाईक, सुरेंद्र पाटील. आपण वळूया पुन्हा एकदा क्रिकेटकडे, जिथे बंटी पॉवर प्लेचा षटक हाताळतोय अरबाजासाठी. पुन्हा एकदा फोर्सेबल स्ट्रोक खेचलेला आहे, तिथे मिड विकेट क्षेत्र येतोय. चांगला प्रयत्न मात्र झेल सोडतोय आणि एक धावच मिळते. प्रयत्न मात्र चांगला होता, कारण की या प्रयत्नामध्ये त्यांनी झेल जरी सोडली तरी एकच धाव देण्यात आलेली आहे, कुठल्या प्रकारची दुसरी धाव दिली झाली नाही. लेकिन इस तरह कैचेस लिए जाने चाहिए, जो कैचेस हाथ को लगते हैं मानो उसको पकड़ा जाना चाहिए. बघू शकता प्रयत्न केला होता तिथे, मात्र झेल काही हातात बसू शकला नाही. नक्श 11 को धनराज वतारी ने खारबाओं से ऑल द बेस्ट कहा है. 37 लॉस ऑफ 3 विकेट. आता मात्र सुरेख फटका कव्हरच्या वरून मारलेला आहे. 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे जातात, मात्र नाही अडू शकत आणि चेंडू आता सीमा पार 4 धावांसाठी. आमदार चौकार. Delightful stroke played by batsman. Interesting to see in replay. Abuzar having a word with Keeman Akil. Look at that. Wide half volley snatched away over the infield. Couple of bounces cross the extra cover boundary for 4. आता मात्र पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजीला सुरुवात झालेली आहे. दोन्ही फलंदाज चांगली फलंदाजी आहेत, अखिल आणि शहबाज. बंटीचा समाचार घेताना मात्र आता मात्र वेगवान चेंडू, फलंदाजाला काही चेंडू समजलेला नाहीये. इन स्विंग बघायला मिळलं तिथे थोडंसं. Yes, I think very good total on the board because Anjuman have 3 spin bowler in their side. या चेंडूमध्ये चांगली पुनरावृत्ती केलेली आहे. चांगला कमबॅक म्हणावं लागेल, मात्र अजूनही क्रिकेट शिल्लक आहे या षटकामध्ये. बघूया अखिल. आता मात्र पायाना चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातो तिथे शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने. एक धाव पुन्हा तर दुसरी धावसाठी कॉल केला जातोय, मात्र रिटर्न आपल्या क्रीजमध्ये. तर 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 4 षटकांच्या क्षमतेत धावसंख्या आपण बघू शकतो. धाव फलंदाजी 42, 42 धावा झालेल्या आहेत आणि शेवटच्या षटकाचा अजूनही खेळ शिल्लक आहे. एक ओवर में कहीं ना कहीं अगर 10 के ऊपर रन आए तो फिर एक बात रहेंगी दर्शन कि जो गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजी खास तौर से वो टेस्ट कर सकती है बल्लेबाजी को नक्श 11 के. बघू शकता प्रिन्स मूवीज हा संघ पुढच्या सामन्यासाठी खेळण्यासाठी सज्ज. सर्व खेळाडू खाली तयारीत आहेत. जॉली कामतगर संघासमोर युवा संघ आहे आणि एक अनुभवी, म्हणजे अनुभव आणि युवा यांचा दोघांची फाईट होणार आहे या पुढच्या सामन्यामध्ये. दरम्यान शेवटच्या षटकासाठी आता प्रारंभ होतोय. परत एकदा चेंडू बदलण्याची माग केली आहे, थोडंसं सहकार्य करायचंय, आणि की ह्यानंतर देखील अजून 2 सामने खेळवायचे आहेत, याची नोंद घ्यायची आहे. गोलंदाजीसाठी नक्श 11 संघाकडून शेवटचं षटक करण येतोय. ये टीम के कैप्टन कल्पेश ठाकरे को दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज के. ऐसा तो नहीं लग रहा है कि प्रिंस मूवीज अपने खिलाड़ियों को ज्यादा दिखाकर जॉली पे दबाव बढ़ाना चाह रही है. सायकोलॉजिकल प्रेशर. थोडंसं सहकार्य करायचंय. नक्श 11 क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं लगेचच. शेवटच्या षटकाची सुरुवात आपणला करायची आहे. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या अंजुमन संघाची बघतोय आपण 42 धावा 42 आणि 3 गडी बाद झालेत. पहिला गडी जो बाद झाला होता तो शहाबाज ज्यांनी चांगलीशी सुरुवात केली, त्यानंतर काशिफ आउट झाला आणि त्यानंतर रेहान. आता खेळणारे 2 फलंदाज आहेत, अखिल आणि अरबाज. अखिल उलटा चेंडू, सुरेख चेंडू, परफेक्ट डिलिव्हरी म्हणायला लागेल. बॉक्समध्ये परफेक्ट चेंडू टाकला होता. एक चांगला चेंडूची समाप्ती. बहुत खूबसूरत गेंद. क्रिकेट में 2 ही चीज़ों की इज्जत की जाती है, सम्मान. एक तो सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर. अतिशय बरोबर. क्रिकेटचा देव म्हटला तो सचिन तेंडुलकर. आता मात्र यष्टांना सोडून जातोय. पंचांचा वाईटचा शय येतोय. अतिरिक्त धाव मिळते या शेवटच्या षटकामध्ये. पहिला चेंडू चांगला, मात्र दुसरा चेंडू गतीमध्ये टाकण्याच्या नादामध्ये विकेटला सोडून जातोय. लेंथ बहुत अच्छी थी लेकिन लाइन से चूक गए थे वहां पर गेंदबाज. हायटेड गेंदबाज आहे आणि उंच गोलंदाज नेहमीच
वेग आणि टप्प्यावर नियंत्रण ठेवतोय अकिल, याच्यासाठी करण. आता मात्र फोर्सेबल स्ट्रोक केला होता बॅटच्या पट्ट्यावर, व्यवस्थित चेंडू येत नाही. दोन क्षेत्रात चांगली क्षेत्रात थ्रो येतोय, डायरेक्ट हिट आणि फलंदाज बाद. अतिशय जबरदस्त फील्डिंग आणि थेट थ्रो आला होता, तो एस्टॅनवर दलतोय. करण की गेंदबाजी को देखिए, श्रीलंका के परवेज मारूफ की याद ताज़ा होती है. उसी तरह का उनका बॉलिंग एक्शन है. अच्छा थ्रो पहुंचा था, सीधा स्टंप से टकराया, आउट हो गए बैट्समैन. ये देखिए फोर्स करना चाहते थे, एलिवेशन नहीं बना, खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, देखना भी शुरू किया था. अक्सर बैट्समैन जहाँ खेलता है वहाँ देखना शुरू करता है और डायरेक्ट हिट लगा था, आउट हो गए बैट्समैन. करण की बॉलिंग, परवेज मारूफ जो श्रीलंका के तेज गेंदबाज थे, उनसे मिला जुला एक्शन है. हालांकि तालुका क्रिकेट में हम देखते हैं तो रकीब जहीर खान की शैली में हरेश मिचल जॉनसन की तरह, मिचल स्टार्क की तरह नवाब स्पोर्ट को कल एक्शन में आप देखेंगे. उनके गेंदबाज अहमद. करण आता मात्र उचलून फेकलेला आहे चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. अतिशय आरामात षटकार खेचलाय असं म्हणण्यास हरकत नाहीये. कुठल्याही प्रकारचा जास्त बॉडी लँग्वेजचा यूज केला नव्हता. चेंडू आला आणि त्या चेंडूला धाडला षटकासाठी, बघू शकता. बहुत बस. खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट. रिस्ट कलाइयों में ताकत भर दी थी शॉट के पीछे. या षटकाराने धाव संख्या झाली ती अंजुमन संघाची 50 धावा, 50. 50 रन पूरे हुए हैं और खतरे की घंटी अब बजती हुई जॉली स्पोर्ट को दिखाया जा रहा था. जॉली स्पोर्ट कामतगर भी एक बहुत ही अनुभवी टीम है, लेकिन इस सीजन में उनका जो परफॉर्मेंस है उतना ऊंचा नहीं रहा है. आता मात्र एक व्यवस्थित टाकल्या चेंडू उजय श्रीरंगाचा सन्मानितरित्या चेंडू केला. खराब क्षेत्ररक्षण आणि चौकार. यापेक्षा खराब क्षेत्ररक्षण काय असू शकतं सिद्दीक बावे सर? चेंडू इतकाही वेगात नव्हता की जो पकडू शकत नाही. नहीं, जल्दी करना चाहते थे रन आउट करने के लिए. गेंद हाथों से टकराई, रिकोशेज हो गई. ये देखिए बैकलिफ को नीचा रखा था, बॉलर के बगल से ड्राइव किया था और गेंद पीछे निकल गई 4 रनों के लिए. थोडासा नाराज तिथे गोलंदाज आपल्या क्षेत्ररक्षणावरती, की इथे एक किंवा दुसऱ्या धावे व्यतिरिक्त जास्त धाव नव्हती, मात्र 4 धावा देऊन बसलाय तो क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफचा. 54 धावा. आता पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. स्विंग थोडस गतीमध्ये परिवर्तन केला, स्लोअर डिलिव्हर केली आणि फलंदाज मात्र या फसतोय. धाव संख्या झालेली आहे ती 54 आणि शेवटच्या षटकाचा शेवटचा चेंडू माझ्या मते शेष असावा. चौपन रन बने, 55 की चुनौती है. आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं. खेलने वाली टीमें जॉली स्पोर्ट कामतगर और प्रिंस मूवीज. और टॉस करने इस वक्त टॉस बॉक्स में जा रहे हमारे साथी कमेंटेटर द लोकल बॉय दर्शन नाईक. धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. तर दोन संघ माझ्यासोबत आता इथे तयारीत आहेत. जॉली स्पोर्ट कामतगर आणि प्रिन्स मूवीज या दोन संघादरम्यान होणारी लढत. माझ्यासोबत आहेत प्रिन्स मूवीजचे कर्णधार कल्पेश ठाकरे आणि जॉली संघाचे कर्णधार अवी पाटील. अतिशय प्रसिद्ध गोलंदाज, विकेट टेकर गोलंदाज. या वर्षी अतिशय फॉर्म मध्ये आहेत. रँकिंग 2 वर चालतात ते. बघूया, चांगली लढत होईल अशी अपेक्षा. आमचे सन्माननीय पाहुणे देखील टॉस बॉक्स मध्ये येताना. सन्माननीय प्रसाद सर देखील आले आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत टॉस बॉक्स मध्ये. आणि त्यांच्या शुभ हस्ते मी विनंती करतोय, मी पाहुण्यांच्या हस्ते हे उपशहर प्रमुख मनोज पाटील यांच्या शुभ हस्ते आता नाणेफेकी होत आहे. आणि प्रथमतः प्रिन्स मूवीज आवाज देणार आहेत. एक साइडला महेंद्र स्पोर्टचा लोबो आणि दुसऱ्या साइडला आपला आमदार महेंद्र स्पोर्ट. आणि महेंद्र स्पोर्ट आलेला आहे. अभिनंदन प्रिन्स मूवीज, आपण नाणेफेकी जिंकलेली आहे. धन्यवाद.
पाहुण्यांचं आभार. आणि मी पाहुण्यांना विनंती करतोय की हे गिफ्ट विजयी संघाला द्यायचंय. अभिनंदन कल्पेश, आपण नाणेफेकी जिंकलेली आहे. कल्पेश, तुमच्या समोर एक अनुभवी संघ आहे, जॉली स्पोर्ट कामतकर. अतिशय धडाकेबाज फलंदाजीसाठी माहीर, गोलंदाजीसाठी माहीर. आपण प्रथम नाणेफेकी जिंकलेली, काय डिसिजन असेल? पहिल्यांदा आम्ही फलंदाजी करणार. फलंदाजी करताना कुठले असे फलंदाज ज्यांच्यावर आपण या संघासमोर धावांचा डोंगर उभारू शकता? पंकज, प्रणित, योगेश यांच्याकडून खूप अपेक्षा असेल. आणि कितीपर्यंत धावांचा टार्गेट देऊ इच्छिता? 50+ क्रॉस करण्याचा प्रयत्न करू. 50+. धन्यवाद. अवी, नाणेफेकी आपण हरलेत आणि आपल्याला प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्याचं आहे, तर आपण किती धावांपर्यंत रोखू इच्छिता प्रिन्स मुळीच्या संघाला? मी 45 तक पर्यंत थांबवायचा प्रयत्न करू. 45 पर्यंत काही चेंजेस तुमच्या टीम मध्ये? रात्रीची टुर्नामेंट आहे, बेनिफिट आहे तो तेवढा थांबवण्याचा. आमच्याजवळ बॉलर आहेत आणि दुसरी गोष्ट काय, रात्रीचा सामना आहे तर टॉस जिंकणे आवश्यक होते, परंतु आम्ही जिंकला असता तर फिल्डिंगच घेतली असती, ते चांगलंच झालं आमच्या. म्हणजे तुम्हाला जे हवं होतं ते तुम्हाला आता मिळालेलं आहे. धन्यवाद तुमचं देखील आणि ऑल द बेस्ट दोन्ही संघांनी. आणि ओ टू सिद्धी बाबे. धन्यवाद दर्शन नाइक. आइए, खेल की शुरुआत हो रही है. जो लक्ष्य रखा है वो है 55 रनों का. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आते हुए किरण और विशाल किरण और भूषण, जबकि आने वाले बल्लेबाजों में बोरियोली के उस्मान पटेल, याहिया खोत का आना बाकी है. तो आइए, खेल की शुरुआत शाहिद खान के साथ. थैंक यू सदीक बाबे. तो दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर. किरण एक बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, उनके साथ में हार्ड हिटिंग बैट्समैन भूषण, दोनों ही ओपनर्स बीच मैदान पर. 11 का इस वक्त रन रेट है. देखना है अंजुमन स्पोर्ट जो गेंदबाजी के लिए काफ़ी मशहूर है. अब इस विकेट पे हमने देखा आज गेंदबाजों को काफ़ी मदद है, किस तरीके से उनके गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं. बल्लेबाजी की तरफ अगर हम देखते हैं, नक्श 11 के पास भी काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है. स्ट्राइक पर है किरण, पहला ओवर लेकर बिल्कुल तैयार इस वक्त गेंदबाज सैफ. समय का पूरा ख्याल रखें, 25 मिनट में आपको आपके 5 ओवर पूरे करने, इस बात को ध्यान रखें, वरना अथवा पेनल्टी हो सकती है. सो प्लीज हमें कोऑपरेट करें. ठीक बजकर इस वक्त 1:15 बाकी है. 12:45 पे इस वक्त मैच की शुरुआत होती हुई. याहिया खोत और नक्श 11 को एमएच बलेरे, जावेद मेस्तरी, लूडो किंग और डीएक्स बाबू ने ऑल द बेस्ट कहा है. मैच की शुरुआत, सैफ बिल्कुल तैयार का सामना करने के लिए तैयार. किरण, सैफ. पहली गेंद इस वक्त अचंभित रह गए थे, टप्पा खाने के बाद हल्की सी टर्न हुई, डॉट गेंद. पहली गेंद डॉट. सैफ वैसे भी एक बहुत अच्छे गेंदबाज है और धीमा करते हैं गेंद को. आपने देखा पहली गेंद बहुत बढ़िया थी. इस बीच गेंद फिर से लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, फिर से समझ नहीं पाए वहां पर किरण. एक और डॉट गेंद. लगातार कठिनाई में एक युवा गेंदबाज है और इस साल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है सैफ का, हमने देखा है. पॉइंट स्पोर्ट्स के सामने सिर्फ रमीज रईस ने उन्हें 2 सिक्सर लगाए थे. फिर से बहुत बढ़िया गेंद. देखना है क्या कुछ हुआ है, अपील की जा रही है वहां पर. एक और डॉट गेंद. ढूंढते रह जाओगे, ढूंढो ढूंढो रे साजना. इस तरह की गेंदबाजी सैफ शेख को इस विकेट पे खेलना इतना आसान नहीं है. बिल्कुल लगातार तीसरी गेंद डॉट कराई है किरण को वहां पर. फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंद. टप्पा खाने के बाद कितनी बाहर की जानिब कट रही है कि खेलने में लगातार कठिनाई में. अब किरण भी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, इस तरीके की गेंद को कैसा खेला जाए.
चौथी लगातार डॉट गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सैफ शेख की, लगातार चौथी गेंद डॉट। किरण इस बीच पैरों में किया था वहां पर अपील, एक रन पूरा होता हुआ। लेग बाइस का इशारा अंपर शकील कुटी का, लेग बाइस के तौर पर खाता खुलता हुआ इस वक्त नक्श 11 का। लगातार कठिनाई में यहाँ पर किरण 4 गेंदें डॉट उन्होंने की, और आपके सामने जब एक अच्छा लक्ष्य हो तो डॉट गेंदें यकीनन आपकी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब स्ट्राइक पर है हार्ड हिटिंग भूषण। इस बीच अगेन इनसाइड आउट, हवा में फील्डर वहां पर मौजूद, और बढ़िया कैच, बड़ी विकेट गिरती हुई इस वक्त भूषण की। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे वहां पर, हवा में गेंद थी और कोई गलती नहीं की फील्डर ने, पहला विकेट गिरता हुआ। कहा था मैंने कि सैफ शेख को इस तरह की घूमती विकेट पर खेलना बहुत मुश्किल है। ये देखिए इनसाइड आउट खेला था, विद स्पिन खेला था, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद थे, पहला झटका लगता हुआ। एक बात तो जरूर है, अरबाज ने उस कैच को पकड़ा था। सैफ शेख ऐसी विकेट के बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हैं, और वैसे भी वो अंडर 19 कांगाली लेदर में ए डिवीजन खेलते हैं। बिल्कुल बात बढ़िया, और एक रन देकर उन्होंने एक विकेट यहाँ पर हासिल किया। बढ़िया ओवर हम कहेंगे। भूषण बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस लौटे। अब नए बैट्समैन इस वक्त आ रहे हैं। बंटी दिखना ये भी एक अच्छे बैट्समैन है, क्योंकि अब एवरेज काफ़ी बढ़ चुका है। 4 ओवर में अब 54 रन बनाने अगर मैच को जीतना है। देखने वाले बैट्समैन में हाँ। याहिया खोत एक बहुत अच्छे स्ट्राइकर है। लेकिन याहिया खोत को कब भेजते हैं, क्योंकि याहिया खोत में क्षमता है, रिवर्स स्वीप भी अच्छा खेलते हैं। अब आए हैं अबूजर, ये भी एक बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। ये ऐसे गेंदबाज हैं जो बैक वक्त तेज और स्पिन दोनों गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में करसन घावड़ी किया करते थे। अबूजर इस बीच गेंद बल्ले का सिरा लगकर गेंद जा रही है। इस वक्त शादाब है वहां पर। एक ही रन स्कोर में, एक रन पहला रन बल्ले से अब जाकर बनता हुआ बंटी के बल्ले से एक रन से खाता खुलता हुआ बंटी का स्कोर इस वक्त 2 रन नक्श 11। अक्षय इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में थोड़े से निराश है उनके टीम के परफॉर्मेंस से, कि टीम के 12वें खिलाड़ी। इस बीच गेंद फिर से इस वक्त गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं किरण के जरिए। एक प्लस पॉइंट है कि लेग बाइस, यस, शाहिद खान एक प्लस पॉइंट है कि बैटिंग पावर प्ले बचा है। बिल्कुल बैटिंग पावर प्ले बहुत अहम रोल अदा करेगा, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है कहीं भी वहाँ पर हम कहेंगे कि गेंद के ऊपर जाके खेलने की कोशिश नहीं हो रही है। और यही है अंजुमन की खासियत कि अंजुमन के पास बहुत अच्छी गेंदबाजी है, और उनके गेंदबाज ज़्यादा रूम, ज़्यादा मौका नहीं देते हैं बैट्समैन को स्ट्रोक लगाने का। अबूजर शॉट किया इस वक्त, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक निकाल दिया। गेंद इस वक्त जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर। शहबाज ने गेंद को उठाया, बढ़िया फील्डिंग, थ्रो वहां पर बहुत ही खराब, और 2 रन इस वक्त पूरे होते हुए। फील्डिंग बहुत बढ़िया की थी, लेकिन थ्रो वहां पर सही नहीं आया था शहबाज का। 2 रन पूरे होते हुए आम गेंद की थी, वहां पर अंदर की जानिब आई थी, लेकिन फील्डिंग लाजवाब, थ्रो अच्छा नहीं। 2 रन जरूर बने नक्श 11 के लिए। बिल्कुल इन 2 रन से स्कोर अगर हम देखते हैं तो बढ़ता हुआ 4 रन। बंटी ये देखिए प्रथमेश को दिखाया जा रहा है, अगले मुकाबले में प्रिंस मूवीज के कैमरामैन प्रथमेश भी खेलेंगे। इस बीच गेंद पैरों के सामने, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक गैप में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। फ्रंट फुट फ्लिक, जिस तरह से स्टीव स्मिथ डांसिंग फ्लिक खेलते हैं उसी तरह का शॉट खेला बैट्समैन बंटी ने। ये देखिए फ्रंट फुट फ्लिक, गजब का शॉट, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया, पहले बाउंस पर गेंद, 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त नक्श 11 फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। अबूजर फिर से एक बार बंटी के लिए। इस बीच बहुत अच्छी गेंद तेज किया था, इस वक्त क्रॉस डिवाइडेड खेलना चाहते थे, अब जाके डॉट होती हुई गेंद। अभी भी काफ़ी लंबा फासला तय करना है, क्योंकि 45 रन जीत के लिए चाहिए, और अगर हम देखते हैं तो गेंदें बची है इस वक्त 19।
अबूजर शॉट गेंद पुल किया, इस वक्त हवा में, फील्डर उसके नीचे और आउट। इस वक्त बड़ी विकेट गिरती हुई बंटी की और दूसरा विकेट। 2 ओवर की समाप्ति और कुल मिलाकर रन बने 9। अब 18 गेंदें और 45 रन और बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं बोरीवली के उस्मान पटेल, याया खोत। ये देखिए शॉट हम पुल किया था, पिछले पाँव पे जाके सीधा वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन गेंद पहुंची थी, आउट हो गए बैट्समैन। नए बैट्समैन याया खोत। देखना है कि याया खोत घूमती हुई गेंदों का किस तरह सामना करते हैं, जबकि गेंदबाजी के लिए अभी भी 2 ओवर बचे जिसमें बैटिंग पावर प्ले लिया जा सकता है और बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ। बिल्कुल बैटिंग पावर प्ले इस वक्त लिया गया है और देखना है इस वक्त बैटिंग पावर प्ले में सैफ को कंटिन्यू रखा गया है। अब याहिया देखना है कि स्पिनर के सामने किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, ग्रामीण में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन देखना है सिटी का क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट में बहुत ही अंतर है। बाबे सर, अब सिटी क्रिकेट में किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं? यस, आए हैं। पहली ऑफिशियल वार्निंग अंजुमन स्पोर्ट्स को दी जा रही है समय के मामले में। सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी अब रख दिए गए हैं याया खोत के लिए। बहुत कुछ डिपेंड करता है याया खोत पे कि वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल 18 गेंदों में 45 रन चाहिए बाबे सर और यहाँ पर 15 का रन रेट है। वेंकटपति राजू की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टम्प्स और अंपायर के बीच से जाते हुए सैफ शेख। सैफ लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से याहिया के लिए। इस बीच ये गेंद समझ ही नहीं पाए, वहां पर डॉट होती हुई गेंद। स्टम्प और बॉडी के बीच से गेंद निकल गई है। चांगला चेंडू, चेंडू वळतो पण आणि फिरतो पण। डॉट गेंद बहुत ही बच गए, किस्मत वाले रहे वहां पर। पहले किरण सैफ के सामने बेबस थे और अब याहिया। सैफ इस बीच गेंद फिर से लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, फिर से गेंद शरीर से टकराई, 1 रन वहां पर पूरा। अभी तक अगर हम देखें तो 8 गेंदें सैफ ने की और कोई गेंद बल्ले पे नहीं लगी है। ये Yes. बहुत बड़ी बात है। चेंडू बॅटच्या पट्टेमध्ये नाही आहेत। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी। इस तरह की गेंदबाजी को आपको खेलने के लिए आप में हर तरह के स्ट्रोक चाहिए। इस बीच ये गेंद फिर से, इस वक्त किरण का बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, लगातार लेग 22 के रन। यहाँ पर बंटी ने अच्छी बल्लेबाजी की, एक चौका उन्होंने लगाया, उन्होंने 7 रन बैट से बनाया और अभी तक स्कोर अगर हम देखें तो 11 रन। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। सैफ घुमा रहे हैं बल्लेबाजों को, देखना है याहिया क्या करते हैं। सैफ इस बीच ये गेंद सीधे बल्ले से, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, तेज ड्राइव। अब और किरण इस वक्त आउट हुए। देखना है वहां पर अंपायर अभी भी कुछ चर्चा कर रहे हैं। देखना है कि यस किरण आउट हुए हैं और किरण जाना कहाँ चाहते थे, उनको तो जबरदस्ती याहिया ने ढकेल दिया। बिल्कुल 7 गेंदें खेली किरण ने और कोई रन बैट से नहीं बनाया। मतलब अच्छी बल्लेबाजी तो हम नहीं कहेंगे बाबे सर, तेज स्ट्रोक जमाया था वहां पर। लेकिन बहुत खूबसूरत थ्रो आया था सिराज का। स्कोर अगर हम देखें तो सिर्फ 12 रन, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। अब नए बैट्समैन इस वक्त आए हैं, समीर। क्या बात है, 12 रन और 55 का टारगेट और भारतीय समय के अनुसार 12:55 हुआ चाहते हैं। इस बीच के लॉफ किया याया खोत ने, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत दूर जाती हुई 6 रन। उस्मान बहुत बढ़िया स्ट्रोक। उस्मान पटेल का अंदाज था शॉट के पीछे, अगेंस्ट द टर्न याहिया खोत ने भेज दिया 6 रनों के लिए। बहुत खूबसूरत शॉट याहिया खोत के बल्ले से। ये देखिए घूम के मारा है शॉट को, गेंद दूर कहीं हवा से बातें करती हुई। फिर से देखिए किस तरह से, ओहो, बिल्कुल गेंद के लाइन के अंदर आकर उस शॉट को खेला था। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक हम कहेंगे याहिया का। पहला सिक्सर इस वक्त नक्श 11 के बल्ले से आता हुआ। सुफियान शेख बालाजी के हार्ड हिटिंग बैट्समैन और राफिद बहादुरकर
गोल्डन बॉय बोरुली ने ऑल द बेस्ट कहा है यहाँ पर याया खोद को। अब देखना है, सैफ शेख भी थोड़े से अचंभित रह गए थे। याया ने एक सिक्सर लगाया है। सैफ फिर से इस बीच गया, लंबा स्ट्रोक, 6 रन, बेहतरीन स्ट्रोक। और ये- सैफ शेख भी इस वक्त सोच रहे हैं कि याया खोद गेंदों को ये छक्का मार रहे या दस्सा। बढ़िया स्ट्रोक। ये सबसे बड़ा सिक्स है अभी तक का। गेंद लालचंद तरे के खेतों में गई है। ये देखिए क्या गजब का शॉट खेला है, बहुत दूर गेंद जाती हुई, 6 रन। याया खोत ने आखिर बता दिया है कि स्पिन गेंदबाजी वो है तेज, वो तेज बल्लेबाजी करेंगे और मैच में वापसी करती हुई यहाँ पर नक्श 11। बिल्कुल भावे सर, सैफ शेख का ये महंगा ओवर हम जरूर कह सकते हैं। 2 ओवर की समाप्ति पे हमने देखा कि जो टोटल था वो था 9 रन और अब 24 रन, मतलब थोड़े से महंगे यहाँ पर साबित हुए। 15 रन खर्च किए सैफ ने, जिसमें 2 गेंदों पे 2 सिक्सर लगाए याया खोद में। अभी भी देखना, मैच समाप्त नहीं हुआ, 24 रन बने हैं। अभी भी जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 31, मतलब 12 गेंदें 31 रन। क्या कुछ होगा आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर सिद्दीक बाबे। धन्यवाद शाहिद खान। 2 ओवर में 31 रन चाहिए। याया खोज जब तक रहेंगी खतरे की घंटी बजती रहेंगी अंजुमन स्पोर्ट्स के लिए। बहुत गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं याया खोज, कुल मिलाकर 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए कमांडो बाइक को दिखाया जा रहा है, लकी ड्रॉ का विनर। देखना है, पहली बार भिवंडी में इस वक्त स्पोर्ट्स बाइक लकी ड्रॉ के तौर पर रखी गई है। अमेरिकन बाइक 1000 रुपये का लकी ड्रॉ का कूपन ये देखिए दिखाया जा रहा है। लीजिए और इसका विनर बनिए। दिलीप जी के हाथों में इस वक्त कूपन, उनके बाजू में संजय भाई मात्रे जी, ओम साई ऑटो किंग मोबाइल के संदीप पाटिल। अब्दुल गफूर गुजर ने याया खुद को ऑल द बेस्ट कहा है। 2 ओवर 31 रन गेंदबाजी के लिए अकील को बुलाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन समीर। सिंदान खोत और मारूफ खोत ने भी इस वक्त याया खोत को ऑल द बेस्ट कहा है। करीबी दोस्त थे याया के और सभी ने अच्छी बल्लेबाजी के बाद ऑल द बेस्ट दिया है। मतलब पहले भी देखते हैं लोग कि बैट्समैन किस तरीके की बल्लेबाजी करता है, उसके बाद ऑल द बेस्ट कहते हैं। इस मरतबा हुक कर दिया है, गेंद जा रही है खाली क्षेत्र में, 4 रनों के लिए वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। मैच में पलटती हुई नक्श 11 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक बाबे सर, बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद थी वहां पर और उतना ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर बैट्समैन समीर का। अब काउंटर अटैक हो चुका है। 2 धारी जब तलवार चलती है तो फिर मुसीबतें खड़ी हो जाती है। अकील, हालांकि सिराज एक ऑप्शन थे गेंदबाजी का, फिर से शॉर्ट गेंद ज्यादा शफल किया, विकेटों के ऊपर से चली गई डॉट गेंद। अहमद बलेरे काफी खुश है आज याया खुद की बल्लेबाजी से। सिर्फ और अहमद बलेरी तालुका क्रिकेट के ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 6 ओवर में शतक लगाया। अब तक के जो शतक थे बिलासर पाटिल, फारूक बर्डी, नदीम और जगदीश के, वहाँ 8 ओवर के शतक रहे थे। इस मरतबा फोर्स और कॉटन बॉल, ब्लेंडर कैच था, बहुत सफाई से पकड़ा अकील ने। अगला मुकाबला जहां पे प्रिंस मूवीज ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बहुत तेज गेंद थी वहां पर, उतना ही तेज स्ट्रोक था, लेकिन अकील को देखिए बहुत बढ़िया कैच वहां पर, कॉटन बॉल। 27 रन अभी भी चाहिए मैच जीतने के लिए और गेंदें बची है 9 और याया खुद नॉन स्ट्राइक पर खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। उनको स्ट्राइक मिलता है या नहीं। 9 गेंदों में 27 रन चाहिए। नए बैट्समैन सुदर्शन आए। सुदर्शन को ऐसे समय में बाउंड्री के दर्शन कराना होंगे अगर मैच में रहना है। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है बाबे सर सुदर्शन। देखना है काफी लेट बल्लेबाजी के लिए आए हैं, लेकिन समय काफी कम है। 9 गेंदें और जीत के लिए 27 रन। ये 3 गेंदें काफी इंपॉर्टेंट है अकील की अंजुमन स्पोर्ट्स के लिए, और ये 3 गेंदें काफी इंपॉर्टेंट है नक्श 11 के लिए जहां पर रन की जरूरत। कमेंटेटर दर्शन नाइक, कमेंटेटर शुभा धुमाल, कमेंटेटर दर्शन नाइक,
इस मरतबा ज्यादा कटी इन कटर थी वाइट। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पे पहुंचा है। 29। देखना अबूजर कुछ कहने जा रहे हैं वहां पर गेंदबाज अकील को। समय में कोऑपरेट करना है। 9 गेंदों में जीतने के लिए अभी कितने रन चाहिए? 26 रन। अकील सामना करेंगे सुदर्शन। लंबा हिट लेना चाहते थे, इन कटर गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई, डॉट। या खुद नॉन स्ट्राइक पर झिंझलाते हुए अब क्या किया जाए? नॉन स्ट्राइक पर या खुद कैद हैं। सुदर्शन इस मरतबा पीछे हटे, नजाकत भरा हुआ लेट कट, गेंद को दूर जाके उठाया शहबाज ने। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। स्कोर 31 पे पहुंचा है। अभी भी बची हुई जो 7 गेंदें हैं उसमें जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 24। बिल्कुल बाबे सर, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये गेंद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या खुद अभी तक नॉन स्ट्राइक पर है। 2 गेंदों पे 2 सिक्सर उन्होंने लगाए। सुदर्शन देखना आप किस तरीके से बल्लेबाजी करते। इस मरतबा लंबा हिट, रन नहीं लिया। या खुद ने स्ट्राइक अपने पास रखा, बैट्समैन आउट हो गए। बिल्कुल अब आखिरी ओवर में डू और डाई की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि जीत के लिए जो रन चाहिए वो है बाबे सर 24। मतलब 4 छक्के लगाने होंगे अगर नक्श 11 को जीतना है। अंजुमन स्पोर्ट आपको फील्डिंग तुरंत सजाना है। आपके 3 मिनट बचे हैं। और ये ओवर भी मैं कहूँगा अकील ने अच्छा किया। हालांकि पहली गेंद पे चौका ज़रूर लगाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छा कमबैक किया। सिर्फ 7 रन दिए और 2 विकेट लिए। मतलब अगर हम देखें तो अच्छा ओवर। देखना अगले मैच का जो भी डिपेंड रहेगा वो कल्पेश ठाकरे पे रहेगा और प्रथमेश पे रहेगा। गेंदबाजी के लिए सिराज को बुलाया गया है। बहुत अच्छे जेन्युइन इन कटर गेंदबाज हैं। 24 रन चाहिए। क्या या खोद आज रात के सुल्तान बनने जा रहे हैं? 2 सिक्सर लगाए हैं। सिक्सर के हैट्रिक पर हैं या खोद। अब तक 2 बैट्समैन सिक्सर के हैट्रिक लगा चुके हैं एमएलए ट्रॉफी में। इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, रन नहीं लिया वहां पर या खोद ने। 5 गेंदे 24 रन। सिराज बहुत ही अनुभवी ऑलराउंडर है अंजुमन स्पोर्ट्स के। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया इन कटर। जागते रहो का आदेश देती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। टिप्पा खाने के बाद अधिक उछाल था गेंद में। बिल्कुल धीमा किया था वहां पर, हल्का अंदर की जानिब काटा था, समझ ही नहीं पाई या डॉट गेंद। बहुत ज्यादा स्विंग होकर गेंद अंदर की जानिब कटी थी। 4 में 4 सिक्सर चाहिए। सिराज फिर से गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई है। ज्यादा शफल किया था वहां पर। विकेटों के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के पास। ये देखिए लेग स्टंप से थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंपायर इज द बेस्ट जज। हालांकि बहुत ही नजदीकी मामला रहा था वहां पर। अंपायर का मानना कि स्विंग होकर बाहर गई। इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया या खोद ने और पहले मई में कैच छूटा। पहले आप में लखनऊ में नवाब की गाड़ी छूटी थी और पहले मई में ये कैच छूटा हुआ। 33 रन
ये देखिए किस तरह से कैच छूटता हुआ। अब बची भी कुल 2 गेंदें हैं और नक्श 11 अपने घर जाने की तैयारी करती हुई। इस मर्तबा तेज इन कटर खेलना चाहते थे, वहां पर गेंद शरीर से टकराई। यहाँ पे नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन बाहर थे, रन आउट हुए। बिल्कुल, अब आखिरी गेंद बची है और अच्छी ओवर हम कहेंगे। सिर्फ अभी तक 2 रन दिए, 5 गेंद याहिया ने खेली है। महेंद्र घोटिया आए हैं अब, लेकिन उन्हें कोई गेंद खेलने को नहीं मिलेगी। अगर ये बैट्समैन जल्दी आते तो कुछ हो सकता था। काफी रिकॉर्ड है इनके नाम ग्रामीण में। या खोद सामना करें सिराज का। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड। 1 गेंद बची है। 1:09 हुआ चाहते हैं मध्य रात्रि के, और इसके बाद 2 मुकाबले और हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, इन कटर पुल और पावरफुल नहीं हुआ। गेंद अंदर ही रही लेकिन रिकोशेज हो गई 6 रनों के लिए। या खोत नट आउट आए, 23 रन बनाए कुल मिलाकर, और इस मैच को जीत लिया है अंजुमन ने। कॉन्ग्रेचुलेशन अंजुमन, कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल, फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह कैच लेने की कोशिश की थी। वैसे भी अबू सर फुटबॉल के बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। देखिए बाबे सर, सीने पे गेंद को लिया था, उन्हें लगा शायद कि गेंद ऊपर उड़ेगी, लेकिन गेंद पीछे चली गई। हट लग अबू सर, हट लग। या खुद अच्छी बल्लेबाजी की, 20 रन उन्होंने अपने बारी में बनाए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शहबाज शेख एंड सरफराज बाबू खान। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं अकिल, इज द मैन ऑफ द मैच, द की मैन ऑफ अंजुमन अकिल। आपको जल्दी आना है अकिल। विशाल पाटिल, आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। ये देखिए